Morning student, I am Gopkumar Srivastav and this is my third video of chapter number 8, The Challenges of Democracy. In this video we discuss about redefining democracy. हम लोग यहाँ पे redefine कर रहे हैं democracy को. So let's understand. We began this tour of democracy last year with a minimum definition of democracy. हमने minimum definition of democracy से start किया था. Do you remember that this is what chapter 2 of your textbook said that last year? Democracy is a form of government in which the rules are elected by the people. Democracy फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इस तरह का गवर्नमेंट जहाँ पे रूल जो रेगुलेशन है या इलेक्शन जो होता है या इलेक्टेड जो लोग पॉलिटिक्स होते हैं या जो लीडर होते हैं वो पीपल के द्वारा होता है. We then look at the many cases and expanded the definition slightly and add some qualification. हम लोग इसमें कुछ बदलाव करेंगे इस डेफिनेशन में. द रूल इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन. जो भी रूल होगा, द रूलर इलेक्टेड, जो रूलर इलेक्ट होगा या जो लीडर इलेक्ट होगा पीपल के द्वारा वो ऐसा डिसीजन लेंगे जो सबके लिए होगा. The election must be offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. और इलेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर जो रूलर है उसको चेंज भी किया जा सके. This choice and opportunity should available to the all the people on a equal basis. यहाँ पे जो opportunity है सबको दिया जाना चाहिए. The exercise of this choice lead to government limited by the basic rules of constitution and the citizen right. ये citizen right के अनुसार होना चाहिए, constitution के अनुसार होना चाहिए. सबको choice होना चाहिए, exercise होना चाहिए, government चुनने का अधिकार होना चाहिए. You must may have felt disappointment that the definition did not refer to any high ideal that we associate with the democracy, but in the operational term we deliberately started with the minimalist but clear definition of the democracy. It allows us to make clear distinction between the democratic and the non-democratic regimes. मतलब यहाँ देखा जाए तो ये एकदम क्लियर डेफिनेशन देता है जो डेमोक्रेसी में क्या अंतर है या नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स में क्या अंतर है. You may have noticed that in the course of our discussion of the various aspects of the democracy, government, the politics, we have gone beyond that definition. मतलब हमें यहाँ देख सकते हैं आप कि हम लोग जब डिस्कस करें इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, तो हम लोग बहुत सारे बातों पे और भी डिस्कशन करते हैं. We discussed democracy right at the length and noted that these rights are not limited to the right to vote. ये सिर्फ राइट टू वोट के पे लिमिटेड नहीं है. स्टैंड इन द इलेक्शन एंड फॉर्म अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये मतलब इलेक्शन को करवाते हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं. We discuss some social and economical right that the democracy should offer to this citizen. हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारा इकोनॉमिक राइट के बारे में, सोशल राइट के बारे में जो सभी को बहुत सारा राइट देता है डेमोक्रेसी में. We have taken up power sharing, the spirit of the democracy. Discuss how power sharing between the government and the social group is necessary in the democracy. यहाँ पे ये भी कहा गया कि कितना ज़्यादा जरूरी है जो पावर है जो शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सोशल ग्रुप के बीच में कितना पावर को शेयर किया जाता है, किस प्रकार से शेयर किया जाता है. सो वी डिस्कस वी शो हाउ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी ब्रूटेड रूल्स ऑफ मेजोरिटी एंड हाउ रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी वॉइस इज नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी. यहाँ पे ये भी कहा गया कि माइनॉरिटी जो सेक्टर होते हैं या जो लोग होते हैं माइनॉरिटी के अंदर, उनको भी डेमोक्रेसी में भाग देना चाहिए या अधिकार होना चाहिए, बात करने का, बोलने का अधिकार होना चाहिए. Our discussion of democracy has gone beyond the government and the activists. We discuss how eliminating the discrimination based on the caste, religion and the gender and is important in the democracy. ये यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, लिमिटिंग के बारे में, या कास्ट के बारे में या रिलीजन के बारे में, कि ये भी बातें जो है, मुद्दा जो है वो डेमोक्रेसी में बात करना बहुत ज़रूरी है. Finally, we have had some discussion about some outcome that can be expect from the democracy. तो इस प्रकार से हमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है डेमोक्रेसी से. In doing so, we not go against the definition of the democracy offered last year. We began then with the definition of what the minimum a country must have to be called a democracy.
In this course of our discussion, we move to the set of the desirable condition that democracy should we have. We have moved from the definition of democracy to the description of the description of good democracy. हम लोग जो डेफिनेशन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम लोग अब बदल गए हैं. हमारा जो डेमोक्रेसी का जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज हो गया है. वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सिर्फ हम लोग एक वोटर नहीं है. अब हमें बहुत सारा बातें जो है डेमोक्रेसी में इंक्लूड हो गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये मत समझिए कि लोगों के द्वारा सिर्फ जो है लीडर चुना जाता है. इसमें बहुत सारे और भी बातें होते हैं. लोगों को पावर मिलना चाहिए, लोगों अच्छा पॉलिटिक्स बनाने के लिए, ठीक ना. एक शक्ति होना चाहिए लोगों का बातों को रखने के लिए, और जो माइनॉरिटी सेक्टर है उसको भी अधिकार देना चाहिए ताकि वो डेमोक्रेसी में भाग ले सके. तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे चैलेंज के बारे में डिस्कस किए हैं और ये चैप्टर हमारा अब जाके ख़त्म होता है. और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेज होता है जिसे हमें रिफॉर्म करना पड़ता है और सुधार करना पड़ता है. और अगर डेमोक्रेसी में सुधार करना है तो हमें पूरी तरह से इसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है. और अधिकार का बात रहा तो सभी को अधिकार है डेमोक्रेसी में बोलने का, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट फॉर्म करने का. सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. थैंक यू. मस्ट रीड दिस चैप्टर. थैंक यू.